سائڈ اس کو لاور سیکھے نا اچھا ایسے ہی جہاں جہاں ضرورت کے حساب سے کہیں یا مان چ نچا میں 600 صرف یہ بار بچائیں 10-12 فٹ میں روڈ پہ جو چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ایک سال قبل عوامی سطح پر آغا باقر الحسینی صاحب نے فیالونگ ڈائیورژن منصوبے کا آغاز کیا. آج خیر سے دوسرا سال شروع ہونے والا ہے اور آج اس منصوبے پر دوبارہ سے کام شروع ہونے والا ہے اور یہاں پر علماء کرام موجود ہیں اور جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس منصوبے کی اگر بات کریں تو 5 کلومیٹر سڑک یہاں تک تعمیر کی گئی ہے اور اب منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے. آغا صاحب، منصوبے کا دوسرا سال ہے، اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کتنے ہوپفل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں تک کچھ معلومات یا پیغام پہنچ سکے، جس کا میں تہ دل شکر گزار ہوں. انشاءاللہ پچھلے سال ہم نے یہ پروجیکٹ ہمارا اپنے ٹھیکیدار کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، تو ہمارے ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ اگر چاہے تو جب بھی چاہے ہم ان سے کام واپس لے سکتے ہیں. اس چیز کا ہم ان کا بھی از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ٹھیکیدار حضرات کا، خصوصاً عدیل شگری اور اعجاز اور رسول شاہ، ان تینوں کا ہم از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب کام شروع کرتے وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی بڑی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور کام شروع کیا. تقریباً 5 کلومیٹر کا راستہ سڑک انہوں نے تقریباً ہمیں بنا کے دیا. تو اس سال ہم نے خود اپنے پیسے کی مقدار کو دیکھ کر، جتنا ہمارے پاس رقم ہے اس کو دیکھ کر، ہم نے خود اپنی یہ جو فیالو واٹر ڈائیورژن ٹیم ہم خود اپنی نگرانی میں ہم خود کرنے کا یہ عزم ہم نے کی ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہمارے اس سال ہمارا عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم پانی انشاءاللہ یہ ٹاپ سے نیچے ہم گرانے کا ہمارا بھرپور عزم ہے. تو اس کے اوپر ہم نے تقریباً کوئی اب تک 5 ایکسکولیٹر ہم نے ہائر کیے ہیں. انشاءاللہ مزید ضرورت ہو تو کام کی حالت کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ اور بھی ایکسکولیٹر، تقریباً ہمارا پروگرام میں کوئی 10 کے قریب ایکسکولیٹر ہم نے یہاں پر ہائر کرنا ہے انشاءاللہ. وہ کام کی حالت کو، اور چونکہ ایکسکولیٹر کے لیے کوئی کام کے لیے فاصلے کا بھی مقدار کی ضرورت ہے، ان سب کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہے کہ پرعزم ہے انشاءاللہ ہم اس سال پانی ٹاپ سے نیچے گرانے کا. تو اس پر ہم عوام کے تعاون کا بھی اور بھی مزید تعاون کی بھی درکار ہے، امید بھی رکھتا ہے. اور یہ جو ہمارے ٹیم جو ہمارے ساتھ ہے، جو ٹیم، ان کا بھی میں تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ، جو بھی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، آج 1 سال سے یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں چاہتے وہ اپنے کیا ہے اپنی مدد آپ ہم نے کام شروع کر رہے ہیں بغیر کسی کے لیے کوئی 1 روپیہ. ہماری جو ٹیم ہے ان کے لیے بغیر تنخواہ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید ہم انشاءاللہ یہ کام ہم پرعزم ہے، یہ کام ہم نے انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ کر لیں گے. اس کی مجموعی لاگت کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 1 ارب 40 کروڑ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور عوامی سطح پر عوام نے دل کھول کا چندہ بھی دیا ہے اور مزید چندے کی یقیناً ضرورت بھی ہے. دوسری طرف جو عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اس اہم منصوبے کو پی ایس ڈی پی کا حصہ بنانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، لیکن پی ایس ڈی پی کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. اس بار بھی یہ منصوبہ پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہے. عوامی نمائندوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بہتر آپ لوگ کو، کیونکہ صحافت اور انٹرویوز اور آپ لوگ یہ میڈیا، آپ لوگ ان چیزات کے اوپر آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں. آپ لوگ ہم سے زیادہ ان سے سوالات کرتے اس بارے میں. تو ابھی تک بس یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی پی میں رکھا ہے. آگے ہم نے لیٹر بھیجا ہے، وزیر اعظم تک گیا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے پتہ نہیں. اور خصوصاً وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمیں پی ایچ ڈی پی میں اگر کچھ نہیں ملا تو ہمیں ضرور نمائندوں سے بھی کچھ کاٹ کے دیں گے. لیکن ابھی تک کوئی اس چیز کا ہمیں خبر نہیں ہے.
नुमाइंदों से उम्मीद कितनी है नुमाइंदों आपको? से तो तकरीबन हम उम्मीद रखता हूँ, नाउमीदी हम इंशाल्लाह किसी से भी नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो लोग को कुछ दे दे तो हम इसकी वसअत को और बढ़ाएंगे। अभी हम तकरीबन 100 क्यूसिक का है, अगर वो लोग अगर हम हमसे ताउन करें तो हम इसको तकरीबन 200, जितना वो लोग उनकी ताउन को देकर हम इसकी मकदार को बढ़ाएंगे। नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जो हमारे पास रकम है इसके ऊपर हम जितना हम 100 क्यूसिक का हमने जो प्लान बनाया इंशाल्लाह वही हम कंप्लीट कर लेंगे। जो PSDP वाला जो है वो PSDP में जा चुका है, लिस्ट में आ गया है और उन्होंने हमें वो कागज़ भी फॉरवर्ड किया है। अभी होता है नहीं होता है वो अलग बात है, क्योंकि वो इसको खुद गवर्नमेंट ने टेकअप किया है और उन्होंने एक कमेटी बनाया है। कमेटी ने सर्वे किया, इसकी रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट सबमिट हो गई और यहाँ से PMD ने आगे PSDP में डाल दिया है। ठीक। और वहाँ से सुनने में आए उन्होंने आगे किसी को फॉरवर्ड किया है, वो मुझे नहीं पता टेक्निकली कहाँ फॉरवर्ड किया है, लेकिन उन्होंने पैसे चूँकि इसका जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कोई 3.5 अरब के करीब है, तो वो उन्होंने आगे कर दिया है। तो अब उम्मीद है कि शायद वो अप्रूव हो जाए। ठीक। अच्छा, चूँकि आप टेक्निकली इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आगा साहब से मेरी ये बात हो रही थी, अवामी सतह पर चंदा मुहिम भी चल रही है और आवाम किस तरह ताउन कर सकती है, भी ज़रा आज इस फोरम पर आप बताइएगा। आगा साहब से गुजारिश करूँगा कि आवाम से खुसूसी गुजारिश भी करें, अगर लागत पूरी नहीं होती तो इसके मॉडल में थोड़ी तब्दीली हो सकती है या फिर मनसूबे को थोड़ा सा इल्तवा का शिकार किया जा सकता है। ये इसको हमने शुरू में ही 4 ऑप्शन पे काम किया और चारों के हमने एस्टिमेट तैयार किए हैं। पहला ऑप्शन ये था कि पाइप लगाएं, ठीक है, ताकि ये इन्वायरमेंटली सेफ हो, सर्दियों में मसला ना हो, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई जो कि अवामी सतह के लिए मुमकिन नहीं था। फिर हमने एक और एस्टिमेट लगाया इसके बॉक्स का, जो कि इस वक्त हम कह रहे हैं करेंगे, वो कोई 1 अरब 1.5 अरब तकरीबन अब तो 1.5 अरब में पहुंच गया। ये था 1 अरब 30 करोड़ का, तो अब वो 1.5 में पहुंचेगा। ये RCC बॉक्स का है। एक हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है स्टोन मैसनरी के साथ ओपन चैनल का, और एक हमने बनाया है अर्दन चैनल जिस पे अभी हम काम शुरू किया है। तो अभी हम अर्दन चैनल पे काम शुरू करेंगे और इस साल हम कोशिश करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा पानी हम थ्रू करेंगे और उसके बाद जितना फंड आएगा उसी हिसाब से इसको हम बॉक्स में तब्दील करते जाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो हमें अगर 2-3 महीने के लिए पानी आ जाता है तो हमारी एटलीस्ट अगले 5-10 साल तक हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। सही। आगा साहब, बहुत अहम मौका है, यकीनन आपके आज़्म और हिम्मत को सलाम। 1 साल बहुत मुश्किल वक्त होता है, ये अब दूसरा साल शुरू होने वाला है। आवाम से इस अहम मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम से तो हम यही आवाम से अर्ज़ करता हूँ कि एक तो सबसे पहले पानी की जो किल्लत को देखकर सब के सब इसराफ से थोड़ा परहेज़ करें, खुसूसन पाइप अपने जो पाइप कनेक्शनों को दुरुस्त करें, उनकी जो लीकेज को उनको कम करें। दूसरी बात यह है कि आवाम से हम यही उम्मीद रखते हैं इस प्रोजेक्ट की निस्बत में हम तमाम आवाम से खुसूसन स्कर्दू जो वाटर राइट है इनसे हम यही तवक्को रखते हैं कि आप लोग भरपूर हमारे साथ ताउन करें। और कौमी एक गैरत भी है, ये कौमी एक हिम्मत भी है और ये एक आले मोहम्मद के नक्श कदम पर चलने का सबसे बेहतरीन एक रविश भी है और उनका आले मोहम्मद का पैगम्बर अकरम कुरान का यही एक पैगाम भी है। और साथ साथ अगर ये कौमी गैरत के साथ साथ हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें तो फिर हमारी फतह भी है इसमें। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी तज़ब्ज़ुब के इस प्रोजेक्ट में आप लोग अपना हिस्सा डालें और एक सदक़ा जारिया है और अबदल आबाद इंशाअल्लाह इससे आपके लिए अजर अज़ीम आपके लिए हासिल होंगे। और पानी देना तमाम अमाल से सबसे बेहतरीन अमल नेक वही पानी, लोगों तक पानी अगर पहुँचाएँ वो सबसे बेहतरीन अमल है और सदक़ा जारिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा नज़ीर भाई, आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहूँगे, चूँकि फ़ंड रेजिंग भी चल रही है अवामी सतह पर और लोग दिल खोल कर अतियात भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अतियात नहीं दे सकते लेकिन टेक्निकली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो टेक्निकली किस तरह के लोगों की आपको ज़रूरत है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आगा साहब से सब की बात को मैं ज़रा थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ कि सबसे पहले कि जो आवाम ने अभी तक जितनी मदद की है, जितनी उन्होंने ताउन किया है वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले 33 सालों से डेवलपमेंट में हूँ और कम्युनिटी के साथ मेरा बड़ा वास्ता रहा है। हमारे लोगों के पास एक तो आमदनी नहीं है और ऊपर से कि हम इस तरह के इज्तिमाई कामों में काम कर सकते हैं, पैसा देना लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे
पुराने वक्तों से हमारे पास कैश नहीं होता था, तो लोग जो है वो खुद जाके तो काम करते थे, लेकिन पैसा उनकी जेब से निकालना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी आगा साहब के कहने पे ये जितना पैसा अभी जमा हुआ है, तभी करोड़ साढ़े सात करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए जमा हुए, तो ये बहुत बड़ी रकम है। यहाँ के लोगों की माशी हालात देखे और यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं इनके अपने वसात के हिसाब से, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक टेक्निकली ये है कि पूरी एक टीम है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा जितने भी हमारे बल्तिस्तान के प्रोफेशनल लोग हैं सब शामिल हैं इसमें। कोई फ़ोन पे हमें एडवाइस करते हैं, कोई आके दफ्तर में हमें बता दें, कोई हमारे साथ ही है उधर और दिन रात लगे हुए हैं। तो सब जो है वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर्स भी हैं, हाजिर सर्विस इंजीनियर्स भी हैं, और इसके अलावा भी जो जितने दूसरे लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग हैं। और मैं सरकार के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ताउन किया। जिससे भी हमने कहा, उन्होंने कहा कि जी हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो ये सब मिल के कर रहे हैं, क्योंकि ये बल्तिस्तान का इशू है, क्योंकि स्कर्दू का इशू पूरे बल्तिस्तान का इशू है। और इसलिए जहाँ का हो, चाहे वो खपलू का है, रुंदू का है, शिगर का है, खरमंग का है, मुंतरी का है, जहाँ का भी है, वो आके ताउन कर रहे हैं। न सिर्फ पैसे के, बल्कि वो अपना टाइम भी देते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमसे आके पूछते हैं कि जी हमें कोई ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। तो ये मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर किबला शेख मोहम्मद हसन जाफरी और दीगर मसालिक के जो अकाबरीन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किबला शेख मोहम्मद हसन जाफरी भी आज यहाँ पर आए हैं प्यालुंग डाइवर्जन मनसूबे को देखने के लिए दीगर अकाबरीन के साथ। किबला यकीनन अवामी सतह पर ये एक खूबसूरत एक तरह से इवेंट था, और किबला बाक़िर अल हुसैनी साहब ने इसका बेड़ा उठाया, अवाम ने साथ दिया, खैर से दूसरा साल जारी है। इस पूरे मनसूबे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा मंसूबा है, हमारी मुआसर ये जो हम वक्त है, इसमें मेरे ख़्याल में किसी ने आज तक ऐसा मंसूबा और इसके किसी के ख्याल में भी नहीं आई अवामी सतह पर। हुकूमतें, आपको पता है हुकूमतें तो बड़ी मंसूबे बनाते हैं, फिर जो है रास्ते में छोड़ देते हैं। बहुत कम मंसूबे होते हैं जो ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो कामयाब के मंजिल तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इखलास अवामी दर्द देखे, जो पिछले साल जो यहाँ पर पानी की किल्लत का जो हशर हो गया ना जी, वो उनके लिए पीने तो छोड़ दे, उनके लिए कतरा कतरा बूंद के लोग तरसने लगे। तो इससे हालत को मद्देनज़र रखते हुए मुशावरत के बाद इसका बेड़ा उठाया हमारे मोहतरम आगा साहब ने, और एक इंतहाई मुतबर्रिक कामयाब मंसूबा है। आपको पहले भी मेरे ख्याल में इब्तिदा में भी जी बिल्कुल, और अभी भी आए तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ये मंसूबा जब मुकम्मल होने वाला है, इसमें कोई वो नहीं है, जब हो जाएगा इस पूरे खत्ते में एक मिसाली एक मंसूबा है कि अवाम अगर मुत्तहिद हो जाए और उलमा की रहनुमाई में, क़यादत में काम करे, तो ये तो करोड़ों का मंसूबा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो स्कर्दू के लिए जो पानी की किल्लत है अवाम के लिए, इसके लिए जो है उम्मीद मुआविन होगा इसमें, और एक मुतबर्रिक अच्छा मंसूबा है इंशाअल्लाह ताला। इसमें हिस्सा लेने वाले हमारी दुआ है उन्हें कि दीन दुनिया बेहतर करवा रहा, और इस खत्ते की खिदमत करने के लिए, इस खत्ते के अवाम की खिदमत करने के लिए। अब देखें इस मंसूबे की एक खुसूसियत यह है, इम्तियाज़ इस पूरा जग में ये मंसूबे में जो शामिल है, तमाम मकातबी फ़िक्र के ज़ुअमा उलमा शामिल है। बिल्कुल, ये मेरे में एक वाहिद मिसाली वो है जी, कम नज़ीर तो शायद बेनज़ीर है बाकायदा। बेशक, हाँ जी, बेशक। ऐसा मेरे ख्याल में आप देखते हैं मामूली छोटे चीज़ों में फिर कवारियत कर रंग देते हैं, ये करते, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ भी नहीं, और रोज़ बरोज़ बेहतर है। लोग जो शामिल भी हो जाएं इसमें, इस मंसूबे में काम करने के लिए हिस्सा भी डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपील भी करेंगे। अब हमने तो यहाँ आके देखा ना जी, और शुनीदन कई वो मानंद है दीदन, इंशाअल्लाह उम्मीद है कल जुमे में अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो इस सिलसिले में हम तफसील से रोशनी भी डालेंगे। अवाम से पहले भी अपील की है, अभी तफसीली तौर पर अपील करेंगे कि भाई ये जो है आब रसानी का जो है ये मंसूबा जो है
ये तकमील तक पहुँचने वाला है बिला शक व तरदीद। परवरदिगार हमारी दुआ यही है इस खत्ते की बेहतरी के लिए, वतन अजीज़ की के इस्तेहकाम सलामती के लिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए अमली तौर पर काम करने की तौफीक इनायत कर मैनेजर से। अच्छा किबला, इसमें यकीनन लेकिन चूंकि आसार ऐसे हैं कि ये उम्मीद यही है, बल्कि कोशिश यही है कि इस साल जो है पानी जो है टॉप से नीचे पहुँचा है। सर, इस प्यालों मनसूबे के हवाले से अमूमन मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए, हुकूमती अकाबरीन आपके पास आए, आगा साहब के पास आए, ताउन की यकीन दहानी भी की, और बहुत तो उस हवाले से क्या कहेंगे किबला, हुकूमती किरदार कैसा था? बस उम्मीद पे दुनिया का है। पर उम्मीद है ना आप उम्मीद अच्छी बात नहीं है, ना उम्मीद अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा तवक्को न रखें। ये आते हैं कहते हैं चले जाते हैं, फिर इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं, छोड़ दीजिए। सही। स्कर्दू शहर में पानी का मसला भी देरपा है, और इसके साथ साथ चूँकि बिजली का मंसूबा भी मरबूत है। स्कर्दू सयाहती हब है, और इस वक्त इस गर्मी के मौसम में भी शहर के अक्सर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। अवामी नुमाइंदों की मैं बात नहीं करूँगा, मुस्तकबिल करीब में स्कर्दू का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है, चूँकि कोई बड़ा मंसूबा हुकूमती सतह पर शुरू हो नहीं रहा? मुस्तकबिल करीब या बाईद में, मुस्तकबिल बईद ही कहे चले, करीब में तो हालात ठीक है। मेरे ख्याल में ये तो कोई कामयाबी के आसार नजर नहीं आते। उम्मीद नहीं है, ये जो कारकर्दगी जो हम देख रहे हैं ना सरकारी, इससे उम्मीद ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा किबला, एक सवाल, क्योंकि सयाहत का सीज़न उरूज पर है, सयाहों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, एक तो इससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, दूसरा जो तहज़ीब और सकाफ़त है वो बड़ी मुतासर हो रही है। सयाहत के SOPs बनाना यकीनन हुकूमत का काम है। ऐसे में हुकूमत को क्या एडवाइस देंगे, क्या मशवरा देंगे कि वो SOPs मुरतब करे, सयाहों के लिए लिमिट्स बनाई जाएँ, चूँकि आने वाले वक्तों में अगर यही सूरत हाल जारी रही तो सकाफ़ती तग़य्युर का बड़ा खतरा है। अच्छा छेड़ा, इसलिए तो इसमें शक नहीं है कि माशी हवाले से और लोगों की माली हालत की बेहतरी के हवाले से आज 10 साल से पहले मुकायसा करें, कोई कयास नहीं है कहाँ से कहाँ पहुँचा है। कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी कोठियाँ बनाए हैं इस्लामाबाद जैसे, ओह कोठियाँ ही माशाल्लाह, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल घरों में 2, 3, 4 हैं। बिल्कुल, शायद स्कर्दू में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा शायद मेरा मोटरसाइकिल हो। जी जी। तो इसमें शक नहीं है कि माशी हालत बेहतर होगी, लेकिन जहाँ भी ये तारीख भी ये बताती है हमें, आप भी माशाल्लाह घूमने वाले लोग हैं, हर चीज़ रिसर्च तहकीक करने वाले लोग हैं, जहाँ भी अचानक जब दौलत की रेल पेल होती है, वहाँ के लोग जो है थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाते हैं। बेशक कुरानी आयत भी है, इन्नल इंसाना लयतग़ा, इंसान आपे से बाहर हो जाता है। अन रहा उस्ताना, मेरे पास कोठियाँ है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास क्या है ये चीज़ें देकर, इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है, वालिदैन की भी और उलमा की तो माशाल्लाह है हमारे यहाँ। इन्हीं की तरबियत की वजह से, कोशिशों की वजह से थोड़ा सा जो खद्द खाल है इस्लामी, लोग आ जाते हैं, सयाह आ जाते हैं फ्रेश करने के लिए, अपनी थकावट दूर करने के लिए, कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। इसमें शक नहीं है कि हम उसमें उनके मुख्तलिफ जब बारात पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से जब लोग आ जाते हैं तो यकीनन उनके अलग अलग वो है कल्चर से अलग होते रहे, इसमें फ़र्क हमारे यहाँ यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम अगर कोशिश जारी रखें तो काफ़ी हद तक हमारा माहौल जो है, दीनी माहौल जो है और हमारा कल्चर जो है, इस्लामी सकाफत जो है बरकरार रहेगा इसमें इंशाअल्लाह। शेख साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट का जो अवामी सतह पे हम खुद कर रहे हैं, आवाम से चंदे जमा करके, पैसे जमा करके हम लोग, ये इतना बड़ा आपने तकरीबन, मैंने पिछले साल इसका एस्टिमेट सुना था 1.5 अरब रुपए का इस पे खर्चा होंगे, तो क्या आप उम्मीद है कि बल्चिस्तान के लोग आवाम जो है वो अपनी मदद आपके साथ इस चैनल को कंप्लीट करने में आपके साथ भरपूर साथ देंगे? बस एक टेस्ट है ना, ये कामयाब होना चाहिए। अगर इस टेस्ट में हम नाकाम हो गए तो फिर मुस्तकबिल में हम कदम नहीं उठा सकेंगे। और उम्मीद है ये जो अभी जो नई जो सूरत हाल है, या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं हमारे, जो दूसरे जो टेक्निकल जो अफराद हैं हमारे, तो सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने जो अभी प्लानिंग जो उन्होंने बनाया है
اس کے تحت تو کافی 80% امید ہے جی یہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ کیونکہ یہ جو کول نکال رہے ہیں نا جی اور جو اس میں زیادہ اخراجات بھی نہیں ہیں الحمدللہ ابھی تک 10 کروڑ سے زیادہ پیسہ دیا ہے لوگوں نے عوام نے پیسہ دیا تو یہ رجحان ہے جی اصل بات ہے اعتماد پہ کام دیکھ رہا ہے نا ابھی آپ جو ہے اسکردو ٹی وی ہے نا میڈیا ہے جو ہے بہترین ذریعہ ہے کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے تسلی ہونے کے امیدوار ہو جاتے ہیں یہاں ہم بیٹھے ہیں آپ آ گئے ہیں اور جو ہے وہ ایکسیلیٹرز ہیں 5 ایکسیلیٹرز وہ ایک وقت کام کر رہا ہے اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اوپر بھی تشریف لے جائے جہاں سے اس کے ڈویژن کا کیا نام ہے اب رسانی کا جو ابتدائی جو جگہ ہے آپ وہاں سے بھی دیکھیں اور جو کام ہو رہا ہے کول جو نکال رہے ہیں اور اس کی تیزی سے جو کام اس کا بھی آپ وہ کر لیں اپنے میڈیا میں انشاءاللہ تعالی کوئی وہ بات نہیں ہے جی جیسا آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے اور لوگ دو چاند جوک در جو اس سلسلے میں شامل ہو جائیں گے جی اس میں انشاءاللہ حساب کتاب ہے اصل باتیں ہیں کوئی وہ نہیں ہے آغا صاحب ہیں ہمارے آغا باقر صاحب ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے باقاعدہ حساب کتاب ہیں ہر چیز میں حساب کتاب کوئی بھی پیسہ دیا ہے وہ آ سکتے ہیں کہ میں ہمارا پیسہ کہاں کتنا ہو گیا کہاں لے گیا کہاں کیا ہوئی کہاں پوچھ سکتے ہیں باقاعدہ ادارہ ہے یعنی ایک حوالے سے دیکھا جائے اتنے ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے منصوبے کے لیے باقاعدہ چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا ادارہ تشکیل دیا جس میں کوالیفائڈ لوگ ہیں انجینئرز بھی ہیں مہندس بھی ہے علماء بھی ہیں کوالیفائڈ افراد بھی ہے اور جو مشینوں کے بارے میں جو سارے سروے کرنے والے افراد ہیں اچھی ٹیم ہے جی اس ٹیم کی وجہ سے ہمیں کافی امید ہے جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ استاد محترم اشرف صدیقی صاحب بھی ان اکابرین میں ہیں جو روز اول سے پیالونگ ڈائیورجن منصوبے میں بطور سرگرم کارکن کام کر رہے ہیں استاد یقیناً عمر آپ پر اثر نہیں کر رہی یہ ایک الگ اللہ کی نعمت ہے اور اس صحت کا راز یقیناً آپ کی ٹریکنگ بھی ہے اس اہم منصوبے کے حوالے سے آپ کی بڑی گرفت ہے آپ روز اول سے آغا باقر اور باقی رفقائے کار کے ساتھ اس اہم منصوبے پر کام کر رہے ہیں پھر سے دوسرا سال شروع ہونے والا ہے اس اہم منصوبے کی ضرورت کیوں ہے اس خطے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ چونکہ میرے شاگرد بھی رہے ہیں تو شاگرد ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ آپ کو مزید توفیقات میں آپ کا اضافہ کر دے آمین پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا انجم کہ اسکردو میں ہم نے 3-4 محلوں میں دیکھا کہ یقین کرے بچے بلک رہے تھے پانی کے لیے کیونکہ اسکردو پہ اس وقت سیاحوں کا بہت بڑا لوڈ ہے ایک یہ اور دوسرا جو ہے وہ 99 میں یہ جو کارگل کی جو جنگ ہو گئی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمارے جو بارڈر ایریا کے جو لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں اسکردو شفٹ ہو گئے جی تو اس کی وجہ سے پانی تو ہمارا وہی ہے لیکن تعداد جو ہے نا میرے خیال میں 10 گنا بڑھ چکی ہے اور خصوصاً کوئی 2-4 سالوں میں ہمارے پاس سیاح اتنے آ رہے ہیں کہ اتنے گیسٹ ہاؤسز کھلے ہیں اتنے شہر میں آبادی بڑھ چکی ہے کہ پانی ہمارے لیے پہلے جو ہم 1 جگ گلاس لاتے تھے اب وہ 10 جگ میں تبدیل ہو گیا یہ اتنا یعنی کہ پانی ہماری ضرورت بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن اب اس ضرورت کے لیے حکومت پاکستان گو کہ اپنی جگہ پہ وہ کر رہے ہیں ان کے لیکن ہمارے لیے وہ پورا نہیں ہو سکتا ستپارہ ڈیم جو ہے وہ ستپارہ ڈیم کی جو پانی ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ان کم ہو رہا تھا آؤٹ زیادہ ہو رہا تھا اور بجلی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ واپڑا والے پانی زیادہ چھوڑتے تھے جس کی وجہ سے سردیوں میں بھی پانی چھوڑنا پڑا تو گرمیوں میں ہمارے لیے پانی کی شدید کمی ہو گئی اور ہم نے بہت سارے محلوں میں عورتوں کو بچوں کو پانی کے لائن میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے شام تک روزوں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے اور اس کے لیے میرے بچپن کے دوست تھے اللہ ان کو مزید ان کی توفیقات میں اضافہ کر دے صحت ان کا بہتر کر دے آغا باقر صاحب جو ہے نا حسینی انہوں نے وہ خود کہتے ہیں کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو ہمارے علاقے کے لیے فائدہ مند ہو تو اللہ نے ان کو چنا ہے اس کام کے لیے
गो कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आगा साहब को मेरे ख्याल में इस काम के लिए चुना है, ये क्या कहते हैं फैलोंग वाटर डाइवर्जन के लिए। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं, चूँकि मैं काबीना में शामिल हूँ, इस कमेटी में शामिल हूँ, पिछले 2 साल से हम जो काम कर रहे हैं, आवाम तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आवाम ये समझ रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या ठेका दे रहे हैं, किसी को अपने लोगों को ठेका दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वॉलंटियरली हम सब मिल के ये काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है और हम अब मुतमईन हैं। आज के इस शेख साहब भी आज हमारे साथ आए और इतनी हाइट पे, पिछले साल मैं और नज़ीर साहब हमने जहाँ पे से पानी निकलता है, जहाँ वो सोर्स है, वहाँ तक हम जाके आए हैं और करीबन अक्टूबर का एंड था और उस वक़्त भी पानी का फ्लो वो कि बहुत कम था, लेकिन पानी आ रहा था। तो हम मुतमईन हो गए कि वो पानी हम इंशाल्लाह डाइवर्ट करके सतपारा डैम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। हमारी ज़िंदगी बाकी ना रहे, लेकिन ये पहुंच जाए तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो गए। सही, माशाल्लाह। तो आप पुरुमीद हैं कि ये पुरुमीद मंसूबा है इंशाल्लाह पानी पहुंच जाएगा। इस साल हमारी कोशिश है कि फिगर तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि कब पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है और हमने जो काम स्टार्ट करवाया है, जिस तरीके से काम हो रहा है, हमारी यानी कि हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने के बाद हम पानी सतपारा के तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली, आप सबकी दुआएं हमारे साथ शामिल रही, तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्ताद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इस अहम मंसूबे में जहां हमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, अवामी सतह पर एक तरह से इत्तेहाद का और यगानियत का पैगाम मिल रहा है, वही बैनुल मसालिक हम आहंगी की भी एक झलक इस अहम मंसूबे में दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ इनायतुल्लाह सिद्दीकी साहब मौजूद है, इस मंसूबे के अहम रुकन समझे जाते हैं। इनायतुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। आज यकीनन आप यहाँ पर उलमाए कराम के साथ, मोहम्मद सादिक सिद्दीकी साहब, माजरत चाहूँगा नाम गलत मैंने पढ़ लिया, आप उम्मीद है आप मेरी एक कोताही माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि हाइट पर हैं, हाइट पर नाम अक्सर मतलब भूल जाते हैं। तो इस अहम मंसूबे के हवाले से आप भी रोज़ अव्वल से साथ हैं और अब खैर से दूसरा साल चल रहा है, कितने पुरुमीद हैं इस अहम मंसूबे की तकमील के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साल हो गया कि हम ऐसे मंसूबे की इफ्तिताह करने जा रहा है कि जो हमारी पूरी जीबी बिलखुसूस जो है वो बल्तिस्तान डिवीज़न की एक अहम स्कीम जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील की तरफ इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है 100% होने जा रहा है। इसके यकीनन सहरा जो है जनाब अल्लामा शेख मोहम्मद जावेरी साहब और आगा बाकरी साहब जो इस प्रोजेक्ट के यानी इसको हैंडल कर रहा है, रूह रमा है, तो इनके कारनामे हैं कि कोई भी काम जो है वो उसकी सरपरस्ती करके चलाना जो है वो महंगा, वो मुश्किल चीज़ है। ताउन करने वाले वो इतने मुश्किल नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मशावरत की और बैनुल मसालिक इत्तेफाक इत्तेहाद भी हो और इस स्कीम के लिए प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से ताउन के साथ जो है इसको पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाने जा रहा है। तो ये एक बल्तिस्तान के लिए बल्कि जेबी के लिए एक तारीखी लम्हा है इंशाल्लाह ताला। ये सिर्फ हमें पानी पूरा करके पानी हमारी कमज़ोरियाँ जो है पानी की कमी दूर करके सिर्फ हमें खुशी नहीं, बल्कि ये इंशाल्लाह ताला माशरे में एक तारीख़ बन जाएगी। तो अवामी तामुन से जो प्रोजेक्ट अभी चला रहा है इंशाल्लाह ताला मुझे तो ज़ाती तौर पर 100% यकीन है, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहबान ने भी वॉलंटियरली इन्होंने बहुत मेहनत की है, कई बार इन्होंने सर्वे किए है, कई बार इन्होंने इसकी फिजिबिलिटी को देखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं की ज़बान से हमने ये सुनता आया है कि इंशाल्लाह इस साल जो है पानी डिवाइड करके हम रिपोर्ट करेंगे। तो हम इनके भी मशकूर ममनून हैं कि इनकी ज़बान जो मुबारक से जो है ये बात हमें सुनने में आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें अब कोई हिच नहीं रहा। ताउन तो यकीनी बात है, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया, ताउन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल
जो काम को इसकी सरपरस्ती करके चलाना जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है आका साहब और बादशाह मोहम्मद हसन जावेदी साहब दीगर हमारी जोमा जो है वो इसको फ़राहदेली और खंदा पेशानी से चला रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसमें अब कोई हिच नहीं रहा है कि कामयाबी में। तो इंशाअल्लाह इस साल हमें उम्मीद है कि पानी डिवाइड होकर पूरी कौम को इस कर्ज की आबादी को कौम को और बल्तिस्तान रीजन के लोगों को, चूँकि इसमें पूरे बल्तिस्तान रीजन के फवाइद जो है वो शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि जल्दी बदे जो है ये स्कीम कामयाब होकर हमें नजर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारी ताउन इंशाअल्लाह ताला हमारी ताउन के हवाले से भी ये मुश्किल नहीं है कि हमारी मीटिंग में जो है वो बहुत मुख्तसर सा वो रखा हुआ है डोनेशन, वो उसको देने में लोगों को इतनी मुश्किल भी नहीं है और इसमें वाजिबी सदक़ात भी दे सकते हैं। तो इसके हवाले से भी लोगों के लिए एक हल्का है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अंजुमन सूफिया नूर रशिया कर्ज़ों की जानिब से मैं लीडिंग कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हमने ताउन करना है और जब तक ये कामयाब नहीं होता हम इंशाअल्लाह ताला आगा साहब और उसकी टीम और ये जितने भी कारकुन के साथ हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मुश्किल मरहला नहीं है, पब्लिक को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल मरहला है और 1 सालों से जो इस मनसूबे के कायदीन हैं पूरे सेक्ट्स को पूरे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे एहतमाम से चल रहे हैं, पूरे तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी हमारी बात हुई, आगा साहब से बात हुई, सिद्दीकी साहब से भी बात हुई। इस साल पानी पहुँचाने के लिए टीम पर अज़म दिखाई दे रही है। अवामी सतह पर शुरू की गई मुहिम इस वक्त जारी है और इस बार फ्यालुंग डाइवर्जन मंसूबे के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो पुरुमीद है कि साल रवां फ्यालुंग का पानी सतपारा में शामिल किया जाएगा। मंसूबे पर काम इंतहाई तेज़ी से जारी है और मेरे अकब में आपको फ्यालुंग नाला दिखाई दे रहा है। ये वही नाला है जिसका पानी डाइवर्ट किया जा रहा है और खालिसतन अवामी मुहिम थी ये और अवामी सतह पर फ़ंड रेज़ किए गए और इस वक्त भी फ़ंड्स की शदीद ज़रूरत है। इस मंसूबे के अकाबरीन का ऐसा बताना है और एक खूबसूरत मंसूबा है। बैनुल मसालिक हम आहंगी का भी यहाँ पर अमली नमूना हमें दिखाई दे रहा है और अवामी कोऑपरेशन का भी मिसाल हमें दिखाई दे रही है। यकीनन ये मंसूबा बल्तिस्तान के लिए मौत और ज़िंदगी का मसला है, चूँकि बल्तिस्तान के वासी एक अरसे से पानी की शदीद किल्लत महसूस कर रहे हैं और पानी की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस मंसूबे की तकमील यकीनन बल्तिस्तान के वासियों के लिए किसी नेमत से केवल टीम यावर करीब और मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।